Hello students, today I'm here with a new topic, that is motivation. It is the second element of directing. After the completion of this session, you will be able to understand the concept of motivation, develop an understanding of Maslow's needs hierarchy theory of motivation, and financial and non-financial incentives. So let's start with our topic, motivation. Motivation means a process of stimulating the people to action to accomplish desired goals. Basically, it is a process of making the subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करती है, इंस्पायर करती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अपने बच्चे को पोइम लर्न करवानी है या स्टोरी लर्न करवानी है, तो हम उसे छोटा सा एक मोटिवेशन देते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी ये पोइम लर्न कर ले, तो मैं तेरे को एक चॉकलेट दूंगी. So that chocolate acts as a source of motivation for the child. Now we will do the features of motivation. The first feature is motivation is an internal feeling. तो मोटिवेशन किसी इंडिविजुअल की इंटरनल फीलिंग है. तो किसी भी इंडिविजुअल की अर्जेस, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, नीड्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होती हैं, वही उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं. People may have different type of urges at different points of time. Like when we are a grown-up child, at that time we may feel the need of a motorbike. उसके बाद when a person gets married, he feels the need of a house. और जब किसी पर्सन के अपने भी बच्चे होते हैं तो उसकी अपनी नीड्स पीछे रह जाती हैं. रादर उसे लगता है कि उसने जो भी काम करना है सिर्फ अपने बच्चों के लिए करना है. सो मोटिवेशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन लाइफ, बट इट विल ऑलवेज बी एन इंटरनल फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, और वही इंटरनल फीलिंग ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इफेक्ट करेगी. सेकेंड पॉइंट इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. Motivation always produces goal-directed behavior. It induces the people to act in such a manner that they can achieve their goals. For example, if a person knows that if he achieves this particular target or if he completes a particular venture, he will be promoted to the next higher position. So this will act as a source of motivation for him. So motivation always produces goal-directed behavior. Third point is motivation can be either positive or negative. Let's see, the motivation can be positive or negative, but the purpose of that motivation is always positive, that is to induce the people to work in the desired manner. The type of motivation which should be given to a person depends from person to person. There are few people who work with positive motivators. Like अगर हम एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेशन देते हैं कि यू विल गेट इंक्रीमेंट इन पे, यू विल गेट बोनस, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन. बट देयर आर सर्टेन पर्सन्स ऑन होम पॉजिटिव मोटिवेटर्स डोंट वर्क. तो ऐसे लोग जिन पर पॉजिटिव मोटिवेटर्स काम नहीं करते, उनके लिए हम नेगेटिव मोटिवेटर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मेमो इशू करना, वार्निंग लेटर इशू करना, किसी की पनिशमेंट ट्रांसफ़र करना, ये सब नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं. पर मोटिवेशन कैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका पर्पस हमेशा एक ही रहेगा कि वी शुड ट्राई टू इंड्यूस द पीपल टू वर्क इन द desired manner so that he can put his or her best efforts for achievement of organizational objectives. The fourth point is motivation is a complex process. Motivation is a very complex process, because all human beings are not alike. So
We have to search the human behavior and accordingly we will provide them the motivation. We will use those motivators which will work upon that person. There are some persons who are motivated with financial incentives, while there are others जिन पर financial incentive काम नहीं करते. Those who don't run after money, rather they are allured of high status. तो उन लोगों के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स काम करते हैं. तो किसी को भी मोटिवेट करने से पहले हमें उस ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को बहुत मैन्यूटली सर्च करना पड़ता है, तभी हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मोटिवेशन प्रोसेस. सो लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट्स विद एन अनसेटिस्फाइड नीड. अगर किसी ह्यूमन बीइंग की कोई ऐसी नीड है जो सेटिस्फाइड नहीं हुई या उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, वहीं से ही मोटिवेशन का प्रोसेस शुरू होता है. सेकंड हमारे पास स्टेप है इसमें टेंशन. एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ ए पर्सन गिव्स हिम टेंशन और एंग्जाइटी. अगर हमारी कोई नीड पूरी नहीं होती तो हमें टेंशन रहती है, एंग्जाइटी होती है, हम उसके पीछे भागते हैं कि हम कैसे ना कैसे इस नीड को पूरा कर लें. देन द ह्यूमन बीइंग फाइंड्स द ड्राइव्स. तो जो ये टेंशन होती है किसी ह्यूमन बीइंग के माइंड में, दिस टेंशन क्रिएट्स एन अर्ज और ड्राइव इन द पर्सन एंड ही स्टार्ट्स फॉर लुकिंग वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज ड्राइव. जब किसी पर्सन की कोई नीड पूरी नहीं होती, उससे उसको टेंशन होती है और उस एंग्जाइटी की वजह से ही, उस टेंशन की वजह से ही वो इधर उधर भागता है और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को सर्च आउट करता है ताकि उसे कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसके थ्रू वो अपनी नीड को पूरा कर सके. सो दिस टेंशन क्रिएट्स एन अर्ज और ड्राइव इन द पर्सन एंड ही स्टार्ट्स फॉर लुकिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स टू सेटिस्फाई हिज ड्राइव. नेक्स्ट इज सर्च बिहेवियर. अब थर्ड स्टेप के अंदर ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स तो देख लिए कि कैसे अपनी नीड को पूरा किया जा सकता है. तो यहाँ पर पर्सन उन सारे अल्टरनेटिव्स का प्रॉपर एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद वो फाइंड आउट करेगा कि किस तरीके से कौन सा बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है. नेक्स्ट वन इज़ नीड फुलफिल्ड. अब बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जिसके थ्रू उसको वो ह्यूमन बीइंग अपनी नीड को पूरा कर सकता है. तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि जब उसने बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ लिया, उसको अडॉप्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देन द नीड ऑफ दैट पर्सन इज़ सेटिस्फाइड. और जैसे ही उस पर्सन की नीड सेटिस्फाई होती है, ही फील्स मोटिवेटेड एंड हिज टेंशन गेट्स रिड्यूस्ड. सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस. जैसी टेंशन रिड्यूस हो जाती है उसके बाद उस ह्यूमन बीइंग को उस पर्टिकुलर नीड के लिए दोबारा से हम मोटिवेट नहीं कर सकते. पर ऐसा नहीं है कि जैसी टेंशन रिड्यूस होगी अब आगे लाइफ में कुछ नहीं होगा. मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी एक नीड पूरी होती है, उसके बाद दूसरी नीड डेवलप हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है. क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स कभी भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी भी 100% पूरी नहीं होती. तो जैसे ही एक नीड पूरी हो जाती है उसकी इम्पोर्टेंस हम भूल जाते हैं, हमारी दूसरी नीड डेवलप हो जाती है, वो भी मिल गया, फिर तीसरी नीड डेवलप हो जाती है. एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन, और हमेशा चलती ही रहती है नीड्स वाला ये पूरा प्रोसेस, मोटिवेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है. तो मोटिवेशन इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट गोज़ ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. क्योंकि हमारी कोई ना कोई नीड्स हमेशा अराइज होती रहती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए उनकी एल्योरेंस की वजह से हम हमेशा उनके पीछे भागते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. जैसे ही एक नीड पूरी होगी फिर दूसरी अराइज हो जाती है एंड सो ऑन. So that way motivation is a continuous process. It does not end by fulfillment of one need. If one need is fulfilled, another develops, and if the another is fulfilled, still another develops, and the same process continues
till we are alive. So this was all about the process of motivation. Now we will do Maslow's needs hierarchy theory of motivation, a very important topic as per CBSE syllabus. So first of all, let's understand some information about Maslow. So Maslow's needs hierarchy theory of motivation, it was developed by Abraham Maslow, who is an eminent and famous psychologist, and he said that the motivation theory is based on the human needs. Abraham Maslow, he was of the view that if one need of a person is satisfied, then the another need emerges. If the another is satisfied, still another emerges. And that way motivation always goes on and on the basis of the fulfillment of human needs. Abraham Maslow, he said that the human needs can be classified into 5 categories. और इन 5 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करने के लिए ही और ह्यूमन नीड्स को उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए ही उसने हायरार्की ऑफ नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हमारी थ्योरी बन गई मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. एंड ही हैज़ ऑल्सो गिवन हिज पिरामिड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स. सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विच इमर्ज ऑन द सीन आर आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स. जो मैस्लो की थ्योरी है कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी तरह की नीड्स हैं. 5 तरह की नीड्स हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स. वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन इज सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. और ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही चलती है. और जो मैस्लो की थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. He says that people's behavior is always based on the needs. Human being का behavior needs पर ही based होता है. Satisfaction of such needs influence their behavior. The second point is he was of the opinion that people's needs are in hierarchical order, starting from the basic needs to the other higher levels of needs. मैस्लो वॉज ऑफ द व्यू कि जो नीड्स हैं हमेशा एक हायरार्की में ही मूव करती हैं. हम बेसिक नीड्स से या फिजियोलॉजिकल नीड्स से ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. द थर्ड assumption इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन. अगर किसी पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई हो गई है तो उसके लिए हम दोबारा उसे मोटिवेट नहीं कर सकते. ही कैन बी मोटिवेटेड ओनली इफ़ नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड अराइजेस, और उसको फुलफिल करने के लिए हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं. देन द फोर्थ assumption इज अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड. इन बिटवीन कोई भी स्किपिंग नहीं होगी. एक पर्सन एक लेवल से दूसरे लेवल पर ही पहुंचेगा. वो कभी भी ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट लेवल हो गया फिर सेकंड को स्किप करके सीधा 5th पर पहुंच गया, सेकंड थर्ड फोर्थ सबको स्किप कर दिया. तो ऐसा कभी नहीं होगा. अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड. फिफ्थ assumption, it helps the managers to realize that need level of the employee should be identified to provide motivation to them. मैनेजर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी एम्प्लॉय की क्या नीड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही उनको मोटिवेशन दिया जा सकता है. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल द नीड्स ऑफ मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. द फर्स्ट ऑन द सीन हियर आर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. We are given 3 basic needs of a human being, that is food, clothing and shelter. These needs are the most basic in the hierarchy and correspond to primary needs. इनको हम primary needs भी बोलते हैं. It is
hunger, thirst, shelter, sleep, food. All these are some of the examples of basic physiological needs. और इन नीड्स को पूरा करने के लिए हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेसिक सैलरी किसी एम्प्लॉय को मिलना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो एम्प्लॉय को मिलने वाली बेसिक सैलरी जो है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट जिसके थ्रू एम्प्लॉय अपनी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकता है. मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हंगर, थर्स्ट, इन सारी नीड्स को पूरा कर सकता है कोई भी एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ बेसिक नीड्स. देन द सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, ही इज़ ऑन अ जॉब, ही इज़ गेटिंग बेसिक सैलरी एंड ही इज़ फुलफिलिंग हिज बेसिक नीड्स, तो उसको और मोटिवेट करने के लिए द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी careful about fulfilling his safety and security needs. Now what it is? These needs provide security and protection from physical and emotional harm. ये नीड्स किसी भी एम्प्लॉय को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हार्म. Once physiological needs of an employee are satisfied, तो उसकी सेकेंड कैटेगरी की नीड्स अराइज हो जाती हैं, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑल्सो. सेफ्टी नीड के अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इलनेस, उसको कंसिडर करेंगे. और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर we will provide that much money to the employee so that he is able to meet his future physiological needs also, कि इन फ्यूचर भी उसको कुछ पेंशन मिलेगी, कुछ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम वो होना ज़रूरी है. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की एग्जांपल्स क्या हैं? इट इज़ जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और इलनेस. और अगर किसी एम्प्लॉय की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, मींस बेसिक नीड्स भी पूरी हो गई, सैलरी भी, प्लस उसको हमने जॉब सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी प्रोवाइड कर दी, उसकी जॉब भी पक्की कर दी, उसकी प्रोटेक्शन को भी इंश्योर कर दिया अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और इलनेस. देन द थर्ड लेवल ऑफ नीड्स अराइज विच कैन बी यूज टू मोटिवेट अ पर्सन, दैट इज एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स. Now what are these? ये क्या हैं? ये नीड्स हैं जिसके थ्रू कोई भी एम्प्लॉय ही हैज़ द नीड्स फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. तो ऐसी नीड्स हैं जो किसी एम्प्लॉय को सोशल होने के लिए या सोसाइटी में रहने के लिए उसे बहुत ज़रूरी हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है? Organization satisfies these needs through informal organization, और वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करती है. एम्प्लॉयज़ को जो सुपीरियर्स हैं अपने पर्सनल फंक्शंस में इनवाइट करते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स के घर भी जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का और उनके सुपीरियर्स का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो एफिलिएशन नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी फुलफिल्ड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद द एम्प्लॉयज़. अगर ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद एम्प्लॉय को और मोटिवेट करने के लिए व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, they have to skip to the next higher level of needs, that is known as esteem needs. Now what are esteem needs? Esteem needs ऐसी needs हैं which are concerned with maintaining self-respect, self-esteem of an employee, and he should be respected by others. So it includes factors such as self-respect, autonomy, status, recognition and attention.
तो एस्टीम नीड्स ऐसी नीड्स हैं जो किसी एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको इंक्रीज़ करती हैं, उसकी प्रेस्टीज को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करती हैं। सो इन नीड्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरा करेगी? इन नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड more challenging jobs to the employees. They will provide them more opportunities for growth and development. The organization will recognize the best efforts of any employee. The organization will provide good titles to a person. और किसी का स्टेटस पहले से इंक्रीज हो गया, उसको रिकग्नाइज कर लिया, इसके थ्रू उसकी एस्टीम नीड्स पूरी हो जाएंगी। अब अगर ये वाली नीड्स भी पूरी होगी, then how the organization can motivate a person further? It is through fulfillment of self-actualization needs. Actually, these are the needs which are considered as highest level of needs in the needs hierarchy theory of motivation. Self-actualization means self-fulfillment of a person. It includes growth and self-fulfillment of an individual. Self-actualization का meaning क्या है? It refers to the drive to become what one is capable of becoming. Means उस मकाम तक पहुंचना जो आप ड्रीम आउट करते हो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो ये नीड्स कैसे पूरी कर सकते हैं? These needs can be satisfied by allowing the employees to take initiative to provide them more and more opportunities for growth and development. So it includes growth, self-fulfillment and achievement of self-goals. So this is the highest level of needs which can be fulfilled by a human being. This is just like self-realization of an individual, but usually this level of needs is never satisfied in a normal human being, because normal human being has no CTT point. He always think higher and higher and higher. So in normal human beings, these needs are never satisfied. One may be close to it, but these needs are not fully satisfied. So these are the 5 types of needs given by Abraham Maslow, in which one person moves from the lower level to the higher level, and in between no skipping is allowed. One can move to the next level only if the previous level of needs have been fulfilled. Now we'll see an example of it. Like if we see about an individual and organization, on the basis of needs, how the organization can help an individual to fulfill all his needs. So let's start from the bottom. The first needs are basic physiological needs, that is hunger, thirst, food, clothing, shelter. So these were the basic needs. These can be fulfilled by giving them basic salary. The second type of needs of an individual are safety or security needs. For example, a person wants stability of income. He wants financial security. For that, the organization can provide them with the pension plans or job security. The third level of needs are affiliation or belongingness needs. These are concerned with the needs for affection, friendship and belongingness with the others. This can be fulfilled by providing cordial relation with the colleagues. The fourth type of needs are esteem needs. In esteem needs, the employee is allowed for getting the higher status, and it can be fulfilled by the organization by giving them job titles and recognition. Then we move to the fifth and highest level of needs, that is self-actualization needs. These can be just like the self-fulfillment or self-realization by an individual, and for organization it is the achievement of goals of an individual, but generally these types of needs are never fulfilled in a normal human being. So according to Maslow's needs hierarchy theory of motivation,
one person can be motivated on the basis of fulfillment of his needs. Thank you and have a nice day.